Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Amit. Before starting this lecture, I would like to thank Hamid for requesting this particular topic. So in this particular session, I will be talking about performance appraisal. Since performance appraisal is a very big chapter, so that's why what I will be doing is I will be covering it into 4 different lectures. So in this first session of performance appraisal, I will be discussing about the meaning, the need and the importance of performance appraisal. This is one of the most important chapters from human resource management. So let us begin. First thing is how we can define performance appraisal. So it may be defined as the assessment of an individual's performance in a systematic way. अब यहाँ पर अगर आप इसको break down करेंगे तो how we can break down this? We can break down this. There is a word called as assessment. Assessment means you are evaluating something. And what you are evaluating, you are evaluating somebody's individual performance. And who is this individual? He is an employee. So basically what we are doing, we are assessing, we are evaluating the performance of an employee in a very systematic way. Systematic means there is a process. So there is a process of doing things. तो सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल में 3 चीजें क्या हो गई. फर्स्ट, आपको इवैल्यूएट करना है. सेकंड, किसको इवैल्यूएट करना है, एम्प्लॉइज को करना है, एंड इन अ सिस्टमैटिक वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स. अब किस फैक्टर्स पे आप असेस करेंगे. द फर्स्ट इज ऑब्वियसली जॉब नॉलेज, कि उसकी जॉब की नॉलेज कैसी है. सेकंड इज देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर आउटपुट. अगर उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जॉब है या कोई सेल्स से रिलेटेड जॉब है तो वो कितने टारगेट्स पूरे कर रहा है, तो आउटपुट जो है उसका वो किस तरह का है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. देन वी टॉक अबाउट द लीडरशिप एबिलिटीज. वी ऑल्सो असेस द लीडरशिप एबिलिटीज बिकॉज वी ऑल्सो नीड फ्यूचर लीडर्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशंस. देन वी ऑल्सो लुक एट हाउ मच सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. सुपरविजन रिक्वायर मीन्स वी ऑल्सो चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय कितना इंडिपेंडेंट है, क्या वो अपने से काम कर लेता है और ही रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ पीपल, क्या उसे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. देन वी टॉक अबाउट द डिपेंडेबिलिटी. दैट मीन्स हाउ मच ही इज reliable, how much is trustworthy. Then we talk about how much versatile he is and how much cooperative is. तो ये different factors पर different organization अपने parameters create करती है, and based on those parameters they assess the performance of an employee in a very systematic way. Now that's called performance appraisal. It could also be defined as defined by Dale and Beach, that it is a systematic evaluation of an individual with respect to his or her performance in a job or his or her potential for development. दोनों चीजें हो सकती हैं. पहला वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि परफॉर्मेंस फॉर जॉब के लिए उसका सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करते हैं. ऑन द अदर साइड वी ऑल्सो लुक एट द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. वी ऑल्सो लुक एट द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, कि उसका कितना पोटेंशियल है, वो आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो हमें वो भी देखना है. तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. Let's talk about the next thing is why we need performance appraisal. Now this will cover the need also, this will cover the importance also, this will cover the objectives also. ये तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का एक ही आंसर है कि why do we need performance appraisal. इतना असेसमेंट करना या इतना इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. The first thing is to effect promotions based on competence and performance. Obviously organization में आपको promotions करने पड़ते हैं time to time. लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट करते हैं हिरार्की में. तो ये कैसे होगा विदाउट असेसिंग द परफॉर्मेंस, कि किसको प्रमोट करना चाहिए और किसको प्रमोट नहीं करना चाहिए. तो पहली चीज जो आपके लिए why do we need performance appraisal, बिकॉज हमें प्रमोशंस करने हैं लोगों को बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंसीज एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पर उनको प्रमोट करेंगे. नेक्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज टू कंफर्म द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन प्रोहिबिशन. ना बहुत सारे एम्प्लॉयज जो न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉयज होते हैं उनका कुछ पीरियड का 1 साल 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि हम एम्प्लॉयज को बेसिकली देखते हैं कि वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है और वेदर ही फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और नॉट, कि वो हमारे कल्चर में फिट होता भी है कि नहीं. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसलिए भी करते हैं कि उसमें से कौन से एम्प्लॉयज को हमें कंफर्म करना है और कौन से एम्प्लॉयज को हमें टाटा बाय बाय करना है. तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. थर्ड थिंग इज टू असेस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ द एम्प्लॉयज. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें एम्प्लॉयज के बारे में पता चलेगी. फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कोई पर्टिकुलर सेक्शन बहुत वीक है. फॉर एग्जांपल इन आईटी सेक्टर हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर में वीक हो, कोई कस्टमर सेलिंग में वीक हो, इन मार्केटिंग. तो इस तरह करके डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट वीकनेसेस हो सकते हैं एम्प्लॉयज के. तो उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन असेसिंग द नीड्स of the employees in terms of their training and in terms of their development need. To decide the pay hike of the employees, obviously when you are promoting someone, जब आप किसी को promote कर रहे हैं तो आप चाहे promote करें
प्रमोशन करेंगे तो पे हाइक तो होगा ही होगा. समटाइम्स इवन इफ वी डोंट प्रमोट बट स्टिल वी हाइक द सैलरी. कई बार आपकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होती बट आपकी सैलरी हाइक हो जाती है. सो दैट्स द रीजन वाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम असेस करें कि उस परफॉर्मेंस को कितना हाइक लगना है. टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर टू डिस्कस द पर्सनल गोल्स एंड कंसर्न. एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं. सबऑर्डिनेट्स अपने काम में बिजी है, सुपरवाइजर अपने काम में बिजी है. बट परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टाइम होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कि एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है और वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं. दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर पर्सनल गोल्स. सबऑर्डिनेट अपना पर्सनल गोल भी डिस्कस कर सकता है, कैरियर गोल्स डिस्कस कर सकता है, कैरियर डेवलपमेंट डिस्कस कर सकता है, कैरियर के डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस कर सकता है. एंड ही कैन ऑल्सो डिस्कस द वेरियस कंसर्न्स विच यू आर फेसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई पॉलिटिक्स का असर पड़ रहा है, कोई ग्रुपिज्म का असर पड़ रहा है, हम अपना 100% नहीं दे पा रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं कर रहा. तो इस तरह की कई बातें आप डिस्कस कर सकते हैं with your supervisor in this phase of performance appraisal. Last but not the least is to determine various HR programs are effective or not. अब जितने भी आप HR प्रोग्राम्स कराते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के हो, डेवलपमेंट के हो, प्लेसमेंट्स के हो, देन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस हो सकता है. 1-on-1 एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन होती है जहां पर कि आपको एक अच्छा खासा फीडबैक मिलता है. आप ये देख सकते हैं कि वो सारे HR प्रोग्राम्स जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कितने इफेक्टिव है या उसका कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं. सो दिस वाज ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड व्हाट इज द नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस विल बी डिस्कसिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. So thanks for watching. We'll be meeting in the next session. If you like my channel, do subscribe to my channel and hit the like button for getting notifications of my videos. We'll be meeting in the next session.